Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, what action does a judge take if the accused pleads guilty in a trial before a court of session under the CRPC? Dismiss the case, record the plea and may convict the accused, order further investigation, or grant bail. यदि सीआरपीसी के तहत सत्र न्यायालय के समक्ष किसी मुकदमे में आरोपी अपना दोष स्वीकार कर लेता है तो न्यायाधीश क्या कार्रवाई करता है? मामले को खारिज कर सकते हैं, याचिका को रिकॉर्ड कर आरोपी को दोषी ठहरा सकते हैं, आगे की जांच का आदेश दे सकते हैं या जमानत दे सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिकॉर्ड द प्ली एंड मे कन्विक्ट द अक्यूज्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, याचिका को रिकॉर्ड कर आरोपी को दोषी ठहरा सकते हैं। Recently, the Kerala High Court in the matter of Chekkutti vs. State of Kerala has held that the right to plead guilty shall not be used as a device to get a lesser sentence. In a trial before a court of session as per the section 229 of CRPC, if the accused admits guilt, the judge is required to record this plea. The judge has the discretion to convict the accused based on this plea. हाल ही में चेक्कुट्टी बनाम केरल राज्य के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि दोषी मानने के अधिकार का उपयोग कम सजा पाने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाएगा। सत्र न्यायालय के समक्ष एक मुकदमे में सीआरपीसी की धारा 229 के अनुसार यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार करता है तो न्यायाधीश को इस याचिका को रिकॉर्ड करना आवश्यक है। न्यायाधीश के पास इस दलील के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराने का विवेकाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section of IPC deals with when the right of private defense of the body extends to causing death? Section 38, Section 76, Section 100 और Section 106। आईपीसी की कौन सी धारा उस स्थिति से संबंधित है जिसमें शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने का विस्तारित है? धारा 38, धारा 76, धारा 100 या धारा 106? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 100। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 100। Recently, the High Court of Karnataka in the case of C. Ganesh Narayan vs. State of Karnataka ruled that pepper spray can't be used for self-defense when there's no immediate threat to life. It's considered a dangerous weapon. Section 100 of the Indian Penal Code deals with when the right of private defense of the body extends to causing death, whereas Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 covers circumstances where the right of private defense of the body extends to causing death under Section 38. हाल ही में सी गणेश नारायण बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय में कहा गया है कि पेपर स्प्रे का उपयोग उन स्थितियों में निजी प्रतिरक्षा के लिए नहीं किया जा सकता है जहां जीवन के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं है। ऐसे में न्यायालय ने पेपर स्प्रे को खतरनाक हथियार माना। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 इससे संबंधित है कि शरीर की निजी सुरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक कब विस्तारित होता है, जबकि भारतीय न्याय संहिता 2023 उन परिस्थितियों को शामिल करती हैं जहां शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 38 के तहत मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to Section 29 of IEA, under what circumstances does a confession not become irrelevant? Promise of secrecy, threat of punishment, involuntary confession, or no legal advisor present? IEA की धारा 29 के अनुसार किन परिस्थितियों में कोई संस्वीकृति अप्रासंगिक नहीं हो जाती? गुप्त रखने का वचन, सजा की धमकी, अनैच्छिक संस्वीकृति या कोई कानूनी सलाहकार मौजूद नहीं होने पर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुप्त रखने का वचन। Section 29 in the Indian Evidence Act 1872 states that confession otherwise relevant not to become irrelevant merely because it was made under a provision of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to questions which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 29 निर्दिष्ट करती है कि एक संस्वीकृति जो अन्यथा प्रासंगिक है केवल इसलिए अप्रासंगिक नहीं हो जाती है क्योंकि यह गुप्त रखने के वचन के तहत अभियुक्त द्वारा नशे में किए गए धोखे से या प्रतिक्रिया में किया गया था। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर देने के लिए अभियुक्त बाध्य नहीं था। इसके अतिरिक्त संस्वीकृति अप्रासंगिक नहीं हो जाती क्योंकि अभियुक्तों को चेतावनी नहीं दी गई थी कि वे इस तरह की संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं हैं और इसके सबूतों का प्रयोग उनके खिलाफ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
According to Section 154 of the Code of Criminal Procedure 1973, registration of FIR is mandatory when the complainant requests it, the information discloses a cognizable offence, a preliminary inquiry is conducted, or the offence is non-cognizable. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अनुसार FIR दर्ज करना अनिवार्य है जब शिकायतकर्ता इसका अनुरोध करता है, जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, प्रारंभिक जांच की जाती है या अपराध असंज्ञेय है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है। Registration of first information report is mandatory under Section 154 of the Code of Criminal Procedure 1973 if the information discloses commission of a cognizable offence and no preliminary inquiry is permissible in such a situation. Under Section 154 of CRPC, that a mere information relating to commission of a cognizable offence is sufficient to register an FIR. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण अनिवार्य है यदि सूचना किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करती है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है। CRPC की धारा 154 के तहत किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी मात्र ही FIR दर्ज करने के लिए पर्याप्त है। द लास्ट क्वेश्चन इज, नो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट पास्ड अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A शैल रिमेन इन फोर्स मोर दैन 6 months, 1 year, 2 years और नन ऑफ द अबव। आदेश 39 नियम 2A के तहत पारित कोई भी कुर्की आदेश इससे अधिक प्रभावी नहीं रहेगा। 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 year। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष। Under Order 39 of Civil Procedure Code, the rule of 2A, Clause 2 states that no attachment made under this rule shall remain in force for more than 1 year, at the end of which time, if the disobedience or breach continues, the property attached may be sold and out of proceeds, the court may award such compensation as it thinks fit to the injured party and shall pay the balance, if any, to the party entitled thereto. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के तहत नियम 2A खंड 2 में कहा गया है कि इस नियम के तहत की गई कोई भी कुर्की 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकती है। यदि अवज्ञा या उल्लंघन इस अवधि के बाद भी जारी रहता है तो कुर्क की गई संपत्ति बेची जा सकती है। बिक्री की आय से न्यायालय क्षतिग्रस्त पक्ष को उचित समझे जाने पर मुआवजा दे सकता है और शेष राशि का भुगतान हकदार पक्ष को किया जाएगा। बिफोर वी रैप अप, हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस द कोर्ट कैन नॉट इशू अ कमीशन? फॉर फ्रेमिंग ऑफ इशूज, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, पार्टीशन और टू परफॉर्म एनी मिनिस्टीरियल एक्ट। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता? मुद्दों के निर्धारण के लिए, स्थानीय जांच करने के लिए, विभाजन या कोई मंत्री स्तरीय कार्य करने के लिए? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।